Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is using tweens in Animate CC, objectives of learning, symbols and instances, classic, motion and shape tween, layers in Animate, masking in Animate. Adobe Animate CC is easy to use. With a system of layers and a relatively easy to understand timeline, it opens up a world of infinite possibilities for creative app and web developers and game designers. It is an animation software that allows the users to make animation projects using pictures, videos, sound and other effects. In the previous class, you have learned about Adobe Animate and its tools. Let us move ahead and learn more about it. तो इस चैप्टर में आप एनिमेट सीसी जो कि अडोब का ही एक पार्ट है, उसमें किस तरीके से आप अलग अलग टाइप की ऐप्स को बनाते हैं, किस तरीके से आप वेब डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी. अब अडोब सीसी को यूज़ करते हुए कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिम्बल्स एंड इंस्टेंसेस, क्रिएटिंग सिम्बल इन एनिमेट. A symbol is a reusable object that we can use for special effects, animation or interactivity. Symbols are sorted in the library panel. When we drag a symbol, Animate creates an instance of a symbol. An instance is a copy of a symbol which is located on the stage. A symbol can connect JPEG image, drawings, etc. There are three types of symbols in Animate. Movie clip symbol used to create animations. We can apply color settings, blending modes and filters in their symbol. Button clip symbol used to insert and manage interactivity. It needs a code or a program to remove work. We can apply color settings, blending modes and filters in this symbol. Graphic symbol used to build more complex movie clip symbols. We cannot apply color settings, blending modes and filters in this symbol. अब आपका सबसे पहला है सिम्बल्स एंड इंस्टेंसेस में से क्रिएटिंग सिंबल इन एनिमेट. इसमें क्या होता है, आपके स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं, एनिमेशंस आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, इंटरएक्टिविटी बेसिकली आपकी आती है. ये आपके यूजुअली लाइब्रेरी पैनल्स में होते हैं, प्लस जेपीईजी, इमेज, ड्राइंग्स एटसेट्रा, इन सारे फॉर्मेट्स में आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं एनिमेशंस में. तीन टाइप के आपके सिंबल्स होते हैं एनिमेट में. पहला है आपका मूवी क्लिप सिंबल. ये आपके एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है. सिंपल आपकी जो कलर सेटिंग्स होती हैं, ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं सिंबल में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. फिर आपका आता है बटन क्लिप सिंबल. जब आपको इंसर्ट करना होता है और इंटरएक्टिविटी को मैनेज करना होता है तब यूज़ होता है. इसको एक कोड की ज़रूरत होती है या फिर एक प्रोग्राम की, ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से हटा सके या कर सके. इसमें भी आप अलग अलग टाइप की कलर सेटिंग्स होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, सिंबल्स के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं. फिर आता है ग्राफिक सिंबल. ग्राफिक सिंबल में आपके जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवी क्लिप्स होती हैं वो ऐड होती है, और इसमें आप बाकी दोनों की तरह जो अलग अलग कलर्स होते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, फिल्टर्स होती हैं, उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ सिंबल. You can create symbols directly on the stage. First, create any object or drawing, then convert it into a symbol so that you can reuse that object throughout your project. Step 1. Select the object you want to convert into a symbol. Step 2. Right-click on your selected object. A menu appears. Step 3. Click on Convert to Symbol from the menu or press F8. The Convert to Symbol dialog box appears. Step 4. Type a name for your symbol. Step 5. Click on Graphic from the Type drop-down list. Step 6. Click on OK. All symbols used in an animate movie are stored in the library palette. अब आपको क्या करना है, सिंबल को क्रिएट करने के लिए आप इसको डायरेक्टली भी अपने स्टेज पे क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप जो भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको सबसे पहले तो अपने जो आपका एरिया है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, सिंबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर ले आइए. उसके बाद आपको सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको सिंबल में कन्वर्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद आपके जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन पे आपके मेन्यू में से, या फिर आप सीधे F8 को भी प्रेस कर सकते हैं. एक कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. उसमें आपको एक नाम टाइप करना है आपके सिंबल का. उसके बाद आपको ग्राफिक पे क्लिक करना है आपके टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और एंड में आपको ओके पे प्रेस कर देना है. आपकी जो भी सिंबल्स यूज़ करें हैं आपने एनिमेट में, वो आपके लाइब्रेरी पैलेट में सेव हो जाएंगे. Creating instances. After creating a symbol, you can create an instance of it by selecting the symbol from a library palette and dragging it on the stage. अब आपको instances को create करना है, तो simply आप जब सिंबल को क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद आप कैसे करेंगे, आप सीधे लाइब्रेरी पैलेट में जाइए, अपने सिंबल को सिलेक्ट करिए, ड्रैग करके उसको स्टेज पे ले आइए.
कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस F6 इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिंबल। अब अगर आपको किसी भी इमेज को सिंबल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6। Creating animation in Animate. Animation is a rapid sequence of images which creates the illusion of movement when played. Animation in Animate is created by changing the contents of successive frames. We can make an object move across the stage, increase or decrease its size, fade in or fade out, change color or shape using animation. There are two types of animations in Animate: frame by frame animation and tweened animation. तो आपका एनिमेशन आप एनिमेट को यूज़ करते हुए कैसे क्रिएट करते हैं, आप इमेजेस इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है आप वो भी कर सकते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब आप जाते हैं या एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में जाते हैं तो फेड इन फेड आउट आप अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके एनिमेशंस दो टाइप के आपको एनिमेट करने के लिए अलाउ करता है। पहला है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और दूसरा है ट्वीन्ड एनिमेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। This animation technique allows you to specify a different art for each frame in the timeline. Use this technique to create an effect that is like the frames of a film being played in rapid succession. When the frames are played one after the other, the effect of movement or animation becomes visible. This technique is used for a complex animation where the graphic elements of each frame must be different. To create an animation, follow the steps given below. Step 1. Draw an object in the first frame, for example, a triangle by using Polystarch tool in the Properties Inspector. Click on the Options button. In Tool Setting dialog box, click on Style option and select the star. You can change the color and stroke setting in the Properties panel. Step 2. Right-click the frame till where you want the animation to continue and click on the Insert Keyframe option. Step 3. Right-click on second frame in between first and last frame and click on the Insert Keyframe option. Step 4. Now, make the changes on the object in this frame, that is, delete, resize, rotate, move and change color. For example, make a slight change in the position of the triangle towards right side of the stage. Step 5. Now, select third frame and insert a keyframe using F6 key. Shift the triangle towards right side of the stage. Change its color to sky blue by selecting it from the fill color picker. Step 6. Click on the fourth frame and press F6 to insert a keyframe in it. Step 7. Shift the triangle towards right and change its color to yellow. Continue to insert keyframe by repeating the above steps till you reach the last frame. Step 8. Preview the animation by clicking on Control and then Test Movie. अब आपका एनिमेशन कैसे काम करता है? फ्रेम बाय फ्रेम का। इसमें क्या होता है, आपकी अलग अलग जो क्लिपिंग्स आपने ऐड करी होती हैं वो जब सक्सेशन में चलने लग जाती हैं तो ऐसा लगता है कि आपका एनिमेशन एक मूवी की तरह एक मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये आप कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट फ्रेम में आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद फॉर एग्जांपल आप पॉलीस्टार टूल को यूज़ करते हुए ट्रायंगल को बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने ऑप्शंस बटन पे जाएंगे, टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक करेंगे ऑन स्टाइल ऑप्शन पे और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे स्टार को। आप कलर को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टीज पैनल में। इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे फ्रेम पे, कहाँ तक करेंगे? जब तक आपका जो एनिमेशन है वो कंटिन्यूड नहीं रहता एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन पे। इसका अगला स्टेप है आपको राइट क्लिक करना है सेकंड फ्रेम पे इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम और उसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन पे। इसके बाद आप अलग अलग चेंजेस आपके ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे कि आपका डिलीट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक स्लाइट चेंज आ जाता है ट्राइंगल की पोजीशन में टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्टेज। ये सारे चेंजेस लाने के बाद अब आपको थर्ड फ्रेम में भी आपको सेम तरीके से राइट क्लिक करना है, आपको फिर इंसर्ट करना है की फ्रेम को यूजिंग F6 की। आपके शिफ्ट करना है आपको ट्रायंगल को टुवर्ड्स द राइट साइड, सीधे राइट साइड ऑफ द स्टेज पे। उसका कलर आपको चेंज करना है स्काई ब्लू में बाय सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द फिल कलर पिकर। कलर चेंज करने के बाद आपको फोर्थ फ्रेम पे क्लिक करना है, F6 को प्रेस करना है ताकि आपका की फ्रेम उसमें इंसर्ट हो जाए।
ये करने के बाद आपका जो ट्रायंगल है उसको आपको शिफ्ट करना है राइट साइड और उसका कलर चेंज करना है आपको येलो में, और ये आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपका जो डिजायर्ड लास्ट फ्रेम है वहां तक आप नहीं पहुंच जाते। ये करने के बाद आपको अपने एनिमेशन को प्रीव्यू करना है, देखना है कि किस तरीके का दिख रहा है, तो आपको सीधे कंट्रोल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको टेस्ट मूवी पे क्लिक करना है, आपको आपके एनिमेशन का एक प्रीव्यू मिल जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, प्रेस कंट्रोल प्रेस एंटर की टू टेस्ट और मूवी। अब इतने सारे स्टेप्स को अगर आपको फॉलो नहीं करना है, एनिमेशन क्रिएट करने के बाद अगर आपको एक प्रीव्यू चाहिए आपके एनिमेशन का, तो सीधे आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए, आपका जो एनिमेशन है वो एक मूवी की तरह प्रीव्यू आपको देने लग जाएगा। दूसरा तरीका है आपका ट्वीन्ड एनिमेशन का। द वर्ड ट्वीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इन बिटवीन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द फ्रेम्स इज कॉल्ड tween. In tween animation, only the starting and ending keyframes are created and the rest is done by the computer, which creates the shortest path between the frames. Animate CC provides 3 types of tweens. Let's learn about them. अब tween animation क्या होता है? इन बिटवीन से इसको निकाला गया है इस वर्ड को। इसका मतलब है पहला और लास्ट की जो होता है उसी को आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। बीच का जो काम है कंप्यूटर अपने आप करता है, शॉर्टेस्ट पाथ ही लेकर जाता है ताकि आपकी पूरी की पूरी एनिमेशन क्रिएट हो जाए। अब ट्वीन एनिमेशन में भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है मोशन ट्वीन। Motion tween is one of the basic animation techniques. It refers to any object that travels from one point to another and involves no change in the shape of size of the object over a period of time. However, changes may occur in color, texture or distance of the objects. The objects in this type of tween always need to be symbols. The various steps to create motion tween animation are listed below. Step 1. Open a new file and draw the object on the stage. In this case, we have drawn a star. After drawing the object, convert it into a symbol by choosing Modify, Convert to Symbol buttons on the Animate window or press F8. Convert it to Movie Clip symbol. Step 2, click on the frame 1 of layer 1 in the timeline panel. Step 3, drag the object in the left hand side of the stage by using the selection tool. Step 4, click on the Insert Motion Tween option from the menu bar. Step 5, the timeline is incremented to frame 24 by default and the play head shifts to frame 24. The default setting in Animate is a set of 24 frames per second FPS, which will create a 1 second animation. We can change this setting if required. Step 6, select the symbol and drag it to the right across the stage. On the stage, notice the motion guide that indicates the symbol path of motion between frame 1 and frame 24. Step 7, to view the motion tween, click on Control, then Test Movie. In Animate, the motion tween animation is displayed in a window. We can change the direction of the animation using motion guide. Move the cursor to the anchor points in motion guide. The animation using motion with a curve. अब आपका पहला क्या पार्ट है? पहला है आपका मोशन ट्वीन। मोशन ट्वीन क्या होता है? बेसिक एनिमेशन टेक्निक्स आपकी होती हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा होता है तो आपका मोशन ट्वीन यूज करा जाता है। इसमें भी आप किसी भी टाइप का जो शेप होता है, कलर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टेक्सचर में चेंजेस आ सकते हैं, अदरवाइज मेजर चेंजेस आप इसमें नहीं कर सकते। किस तरीके से आप इसको वेरियस स्टेप्स होते हैं आपके मोशन ट्वीन को क्रिएट करने के लिए भी। सबसे पहले तो आप एक न्यू फाइल को ओपन करेंगे, उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे स्टेज पे। ऑब्जेक्ट आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? बाय चूजिंग द मॉडिफाई। उसके बाद कन्वर्ट टू सिंबल पे जाना है। आपके जो बटन्स आते हैं आपके एनिमेशन विंडो में, या फिर आप सीधे F8 पे प्रेस कर दीजिए। फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है मूवी क्लिप्स सिंबल पे। इसके बाद आप जो आपका फ्रेम 1 ऑफ लेयर 1 है उस पर आप क्लिक करेंगे आपके टाइमलाइन पैनल पे। फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आपका स्टेज का लेफ्ट हैंड साइड होगा, बाय यूजिंग द सिलेक्शन टूल। ये कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे। इंसर्ट के बाद आपको मोशन ट्वीन ऑप्शन पे जाना है आपके मेन्यू बार पे। आपका जो टाइमलाइन है वो इंक्रीमिनेटेड है टू फ्रेम 24 बाय डिफॉल्ट। इसमें आपको जो प्ले है वो आपका ऑटोमेटिकली इट विल शिफ्ट टू फ्रेम 24। जो डिफॉल्ट सेटिंग है एनिमेट पे, इट इज सेट टू 24 फ्रेम्स पर सेकेंड FPS, जो कि आपका 1 सेकेंड का एनिमेशन क्रिएट कर देता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद आपको जो सिंबल है उसको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है राइट साइड पे अक्रॉस द स्टेज, और उसी स्टेज पे आप नोटिस करिएगा कि मोशन गाइड जो है वो इंडिकेट करेगा एक सिंबल पाथ ऑफ द मोशन बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 24।
एंड में आके अगर आपको मोशन ट्वीन पे देखना है कि वो किस तरीके का दिख रहा है, कंट्रोल पे जाइए, उसके बाद टेस्ट मूवी पे जाइए जो कि आपके एनिमेट में होगा। मोशन ट्वीन एनिमेशन आपके सामने एक प्रीव्यू उसका दिखने लग जाएगा। इसका जो डायरेक्शन है एनिमेशन का वो भी आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोशन गाइड। आपके कर्सर को एंकर पॉइंट्स पे लेके जाइए जो कि आपकी मोशन गाइड पे होगा, और एनिमेशन को यूज करते हुए आप उसके कर्व्स को या फिर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है क्लासिक ट्वीन। Classic tween is an animation primarily used for transition purposes. To create a classic tween, perform the following steps. Step 1. Create a new animate CC document with ActionScript 3.0. Step 2. Click on the fill color tool to choose a color of your choice. Step 3. Select the Polystar tool from the tools panel. Step 4. Draw a star on the left hand side of the stage by using the Polystar tool. Step 5. Click on the frame 1 on the layer 1 of the timeline. Step 6, select the insert, create classic tween option from the menu bar. Step 7, click on frame 20 on the layer 1 of the timeline. Step 8, click on the insert, timeline, keyframe option from the menu bar. Step 9, select the selection tool from the tools panel. Step 10, drag the star to the bottom of the stage. Step 11, click on the frame 40 on the layer 1 of the timeline. Step 12, select the insert, timeline, keyframe option from the menu bar. Step 13, select the selection tool from tools panel. Step 14, drag the star to the right hand side of the stage. Step 15, select the control test movie in animate option to play the movie. फिर आपका आ जाता है दूसरा ट्वीन का मेथड जो है क्लासिक ट्वीन। क्लासिक ट्वीन में आपका क्या होता है, जो आपके ट्रांजिशन प्रोसेस में बेसिक आपकी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आप एक न्यू एनिमेट सीसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करिए विद ActionScript 3.0। इसके बाद आप फिल कलर टूल पे जाइए, आप जो भी आपको कलर चाहिए आप उसको चूज़ करिए। चूज़ करने के बाद आपको पॉलीस्टार टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल्स पैनल। आप एक स्टार को ड्रॉ करिए आपके स्टेज के लेफ्ट साइड पे यूजिंग द पॉलीस्टार टूल। इसके बाद आप फ्रेम 1 ऑन द लेयर 1 पे क्लिक करेंगे आपके टाइमलाइन के। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के बाद आप क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन पे जाएंगे जो कि आपका मेन्यू बार पे है। इसमें आप फ्रेम 20 पे क्लिक करेंगे ऑन द लेयर 1 ऑफ द टाइमलाइन। उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट के बाद टाइमलाइन पे जाएंगे, टाइमलाइन के बाद आप की फ्रेम ऑप्शन पे जाएंगे आपके मेन्यू बार के। इसके बाद आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल्स पैनल में से। इसके बाद अपने जो आपका स्टार है उसको आप स्टेज के बिल्कुल नीचे बॉटम तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको फ्रेम 40 ऑन लेयर 1 जो आपका है टाइमलाइन पे उस पर क्लिक करना है। फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट के बाद टाइमलाइन पे जाएंगे, टाइमलाइन के बाद आप की फ्रेम पे जाएंगे जो कि आपका मेन्यू बार पे ऑप्शन होगा। फिर आप सिलेक्शन टूल जो आपके टूल्स पैनल पे होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। आपके स्टार को आप स्टेज की राइट हैंड साइड पे ड्रैग करके लेके जाएंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल के बाद आप जाएंगे टेस्ट मूवी पे आपके एनिमेट में, जिससे कि आपको आपके एनिमेशन का एक प्रीव्यू मिल जाएगा। फिर आता है शेप ट्वीन। शेप ट्वीन इज सिमिलर टू मेकिंग वन शेप अपीयर टू चेंज इनटू अनदर शेप ओवर टाइम बाय ट्विनिंग शेप्स. You can create an effect similar to morphing, making one shape appear to change into another shape over time. An example of this can be a star changing into a pentagon. To create a shape tween, perform the following steps. Step 1. Create a new document in Animate CC. Step 2. Select the Polystar tool from the Tools panel and draw a star on the stage. Step 3. Select the Selection tool from the Tools panel. Step 4. In the Timeline panel, right-click on frame 50 and select the Insert Keyframe option. Step 5. Select the star object on stage by using the Selection tool. Step 6, press the delete key. The star object will be removed from the stage. Step 7, select the Polystar tool from the tools panel and draw a pentagon. Step 8, right click on the timeline panel between frame 1 and frame 50 and select the create shape tween option. Step 9, the timeline color changes to green and the shape tween is created. Step 10, to view the shape tween, click on the control Test Movie in Animate option from the menu bar. The shape tween animation is now displayed in a pop-up window. अब आपको क्या करना है, अब आपका ये तीसरा तरीका है शेप ट्वीन। ये आपका मॉर्फिंग की तरह काम करता है। एक इमेज विद एनिमेशन आपकी दूसरी इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपके एनिमेट सीसी पे। फिर आपको पॉलीस्टार टूल को सिलेक्ट करना है टूल्स पैनल में से और आपको अपने स्टेज में एक स्टार को ड्रॉ करना है। फिर आपको सिलेक्शन टूल पे जाना है टूल्स पैनल में से। आपका जो टाइमलाइन पैनल होगा उसमें राइट क्लिक करना है आपके फ्रेम 50 पे। उसके बाद आपको इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे स्टेज पे बाय यूजिंग द सिलेक्शन टूल।
डिलीट की पे प्रेस करेंगे, जो आपका स्टार ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा आपके स्टेज से। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल और उसके बाद आपको ड्रॉ करना है एक पेंटागन। राइट क्लिक करेंगे आपके टाइमलाइन पैनल पे बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 50 और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट शेप ट्वीन ऑप्शन पे। जो टाइमलाइन कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में और आपका शेप ट्वीन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो शेप ट्वीन है उसको अगर आपको व्यू करना है, आपको कंट्रोल पे जाना है, कंट्रोल के बाद टेस्ट मूवी में जाना है, आपके एनिमेट ऑप्शन में आपके मेन्यू बार में से जो शेप ट्वीन एनिमेशन है वो आपके सामने एक पॉपअप विंडो में डिस्प्ले हो जाएगी। Critical thinking. Nisha wants to apply shape tweening animation on a symbol, but when she started the work, the shape tween option got disabled. Tell her the mistake she is doing. तो निशा जो है उनको ट्वीनिंग शेप ट्वीनिंग एनिमेशन को यूज़ करना था सिंबल पे, बट जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू करा जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो गया। आपको बताना है कि निशा क्या गलती कर रही है। Layers in Animate. Layers are divisions with your project's timeline. They are useful for organizing your work. They are like sheets of transparent paper placed on the above the other. They help in organizing your artwork or animation. An object can be added or edited on a layer without affecting the objects on other layers. When a new Flash movie is created, it contains only one layer by default. You can add more layers in your movie as per your requirement. Each layer is a separate thing, but an entire scene can be created with a stack of layers, each with drawings on them. For example, you may have the background as one layer and the animated object on another layer. The standard view of a layer is shown in the figure given below. There are several kinds of layers. These are normal layers, guide layers and mask layers. By default, all the layers you add to the timeline are normal, which means all the objects on the layer appear in the movie. The objects that you place on guide layers do not appear in the movie. When a new animate movie is created, contains only one layer by default. अब आपके एनिमेट में अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं, ये अलग अलग टाइप की डिविजन्स होती हैं आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अंदर ही। ये कब यूज़ होते हैं, आपकी बहुत सारा जो काम होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह होती हैं जो एक के ऊपर एक प्लेस करी जाती हैं। ये आपका जो आर्ट वर्क होता है, एनिमेशन होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन दी लेयर्स। मतलब आप लेयर्स को ही एडिटिंग करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स को कुछ भी नहीं होगा। तो एक न्यू फ्लैश मूवी आपकी क्रिएट हो जाती है तो उसमें सिर्फ एक ही लेयर होता है बाय डिफॉल्ट, आप और भी लेयरिंग्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ईच लेयर हैज़ अ सेपरेट थिंग बट एन एंटायर सीन कैन बी क्रिएटेड विद अ स्टैक ऑफ लेयर्स। यानी कि एक स्टैक में आपका एक सीन होता है बट मल्टीपल चीज़ों को आप बहुत सारी अलग अलग लेयर्स की स्टैकिंग करके आप प्रॉपर एक सीनरी बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके लेयर्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल लेयर्स, गाइड लेयर्स, मास्क लेयर्स। नॉर्मल लेयर जो होता है सिंपली आपकी जो मूवी में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको दिखाता है, बट आपकी अगर कोई लेयरिंग गाइड लेयर में हो रखी है तो वो आपको मूवी के बीच में नहीं दिखाई देगा। Working with layers. One layer can be activated at a time, but more than one layer can be selected at one go. Working with layers is interesting. You can rename a layer, add number of layers, hide and lock layers, delete layers, change the position of layers, and the layers can also be customized. To insert a new layer, click on New Layer button from the Timeline panel. You can also insert new layer by clicking on Insert, Timeline, Layer. A new layer will be created on top of the selected layer. To delete a layer, select the layer and click on Delete button from the Timeline panel. You can delete more than one layer by clicking the first layer you want to delete, and then press Ctrl key while clicking other layers and then click on Delete Layer icon. The layer disappears from the timeline. If you have deleted the wrong layer accidentally, you can click on Edit menu and then click on Undo Delete Layer. To lock a layer, click on the bullet button below the lock or unlock in the timeline. On layers button of the layer will be locked. To unlock a layer, click on the lock or unlock button. Layers can be hidden from view to make the work easier. In the timeline, click on the bullet button below the show or hide. All layers button of the layer will be hidden. Once clicked, the bullet will change to the cross button. To display a hidden layer, click on the cross button. To rename a layer, double click on the layer name and type a new name. Press enter key, the layer name changes. अब आपका आता है लेयर के साथ काम करना।
एक बार में आप एक ही लेयर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लेयर्स को आप एक ही बार में सिलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही लेयरिंग के साथ आप काम करते हैं। अब इसमें भी आपके अलग अलग टाइप की ऑप्शंस आते हैं। आप लेयर को रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप सबसे पहले अगर आपको इंसर्ट करना है एक नई लेयर को, आपको न्यू लेयर बटन पे क्लिक करना है आपके टाइमलाइन पैनल में से। अब सिंपली आप नई लेयर को इंसर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट के बाद जाइए टाइमलाइन पे, टाइमलाइन के बाद जाइए लेयर पे, एक नई लेयर आपकी बिल्कुल सिलेक्टेड लेयर के टॉप पे क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको डिलीट करना है लेयर को तो सिंपली अपनी लेयर को सिलेक्ट करिए, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करिए आपके टाइमलाइन पैनल में से। आप सिंपली एक बार में एक से ज़्यादा लेयर को भी डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द फर्स्ट लेयर यू वांट टू डिलीट, और उसके बाद कंट्रोल की को दबाइए व्हाइल क्लिकिंग अदर्स लेयर एंड धीरे धीरे डिलीट आइकन पे क्लिक करते रहिए। अब अगर आपको किसी भी लेयरिंग को डिलीट करना है तो सबसे पहले तो आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन जो आपके टाइमलाइन पैनल पे आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एक ही बार में एक से ज़्यादा लेयर्स को डिलीट करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले तो प्रेस करना है कंट्रोल, एक लेयर को सिलेक्ट करना है और धीरे धीरे आप डाउन वाली की को लाते हुए सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको डिलीट करनी है। अब अगर गलती से आपने गलत लेयर को डिलीट कर दिया है, आपको अंडू करना है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडिट मेन्यू पे जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है अंडू डिलीट लेयर पे। अब अगर आपको लेयर को लॉक करना है तो आपको क्लिक करना है बुलेट बटन में, जो कि जस्ट लॉक और अनलॉक ऑप्शन के नीचे होगा आपके टाइमलाइन पे। जितने भी लेयर्स वाले बटन हैं वो आपके लेयर में लॉक हो जाएंगे। अब इन लॉक्ड लेयर्स को आपको अनलॉक करना है तो आपको लॉक अनलॉक बटन पे जाना है। उसके बाद आपको जो लेयर्स हैं वो आपके हिडन व्यू में भी आ सकते हैं, जो आपके काम को और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। टाइमलाइन में जाइए, क्लिक करिए बुलेट बटन पे, जो कि जस्ट आपके शो और हाइड वाले बटन के नीचे होगा। जितनी भी आपकी लेयर्सिंग हैं वो आपकी हाइड हो जाएगी। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे जो बुलेट है वो आपके क्रॉस बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये हिडन लेयर्स को दिखाना है तो आप इस क्रॉस बटन पे क्लिक करिए, आपकी हिडन लेयर्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अब अगर आपको अपनी लेयरिंग को रीनेम करना है तो उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे आपके लेयर नेम पे, अपना नया नाम टाइप करिए, एंटर की पे प्रेस करिए, आपकी लेयर की नेम चेंज हो जाएगी। Masking in Animate. Masking in Animate is used to hide a selected part and display content instead on a layer. Masking enables us to control the content that is visible to the audience. In order to create a spotlight effect, we can create a circular mask and have the audience only view the content within the circular area. This enables the audience to focus on the important content in the project or graphics. Follow the given steps to create a masking effect. Step 1. Open a new file in Animate CC. Step 2. Select the selection tool from the tools panel. Step 3. In the timeline panel, click on the frame 45 and then right click and select the insert frame option. Step 4. Click on the frame 1 from the timeline panel. Step 5. Select the file, import to stage option from the menu bar to import pictures to the background. Step 6. Imported image appears on the stage, add a new layer. Step 7. Select the layer 2 from the left pane of the timeline panel. Step 8. Click on the frame 1 in the timeline panel. Step 9. Select the polystar tool from the tools panel and draw a star to the left side of the stage. Step 10. In the timeline panel, right click on the frame 45 of the layer 2. Step 11. Select the convert to keyframe option. Step 12. Select the selection tool from the tools panel. Step 13. Select the star object and drag this object to the right side of the stage. Step 14. Now right click on the timeline panel between frame 1 and frame 100. Select the create shape tween option. Step 15. As soon as we create the shape tween, the timeline color changes to green. Observe the bottom panel. Now right click on the layer 2 and select the mask option. Step 16. As soon as we select the mask option, the mask is created. In order to view the mask, click on the control test movie in animate option from the menu bar. The masked animation is now displayed in a pop-up window. अब ये क्या है आपका, जब आपको एनिमेट में मास्किंग करनी होती है तो उसके आपके कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, आपका जो सिलेक्टेड पार्ट होता है आपके एनिमेशन का वो
कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाता है, आपका जो कंटेंट है वो लेयरिंग में नहीं दिखाई देता है। मास्किंग क्या करता है, इट एनेबल्स द कंटेंट दैट इज विजिबल टू द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को क्या कंटेंट आपको दिखाना है वो आप खुद से चूज कर सकते हैं, क्या नहीं दिखाना है उस पर आप मास्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक नई फाइल को ओपन अप करेंगे आपके एनिमेट सीसी पे। इसमें आप टूल्स पैनल पे जाएंगे और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। टाइमलाइन पैनल में आप क्लिक करेंगे फ्रेम 45 पे, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन पे। फिर आप फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे टाइमलाइन पैनल पे। इसके बाद आपको फाइल पे सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट पे जाना है, इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन पे आपके मेन्यू बार में से, ताकि आप बैकग्राउंड पे अपनी इमेज को इंपोर्ट कर सकें। जो आपकी इंपोर्टेड पिक्चर है वो आपके स्टेज पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। आपको एक नई लेयर को ऐड करना है, सिलेक्ट करना है लेयर 2 फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द टाइमलाइन पैनल। इसमें आपको फ्रेम 1 पे सिलेक्ट करना है टाइमलाइन पैनल में से। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे पॉलीस्टार टूल पे। पॉलीस्टार टूल पे सिलेक्ट करने के बाद जो कि आपका टूल्स पैनल पे होगा, एक स्टार को आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपका जो टाइमलाइन पैनल है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे फ्रेम 45 पे ऑफ द लेयर 2। After this you have to select on the convert to keyframes option। फिर आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल आपके टूल्स पैनल में से, स्टार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे इस ऑब्जेक्ट को आपके स्टेज के राइट साइड पे लाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है टाइमलाइन पैनल पे बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 100। सिलेक्ट करेंगे आप क्रिएट शेप ट्वीन ऑप्शन को। जैसे ही आप क्रिएट कर लेंगे शेप ट्वीन, जो आपका टाइमलाइन कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके बॉटम पैनल पे। अब आपको जो आपका मास्क ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करना है, उससे पहले आपको राइट क्लिक करना है आपके लेयर 2 पे। सिलेक्ट करने के बाद आपको मास्क ऑप्शन पे जाना है। मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपका मास्क क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि आप ये मास्क किस तरीके का आपके एनिमेशन पे दिखाई दे रहा है, आप कंट्रोल पे जाइए, कंट्रोल के बाद टेस्ट मूवी पे जाइए, आपके एनिमेट ऑप्शंस में से जो आपके मेन्यू बार पे होगा, जो मास्क एनिमेशन है वो आपके पेज पे एक पॉपअप विंडो की तरह डिस्प्ले होने लग जाएगा। Let's revise. Animate is an effective tool used to create animations for the web pages. A symbol is an object in Animate. Symbol is a reusable graphic, button or movie clip created in Animate. Layers are sheets on which you place your drawings, animation and objects. There are 3 types of layers: normal layer, guide and mask layer. Animate CC provides 3 types of tweens: motion, classic and shape. Motion tween makes an object move along a guided path. Classic tween is primarily used for transition. Shape tween changes the shape of one object to another. Masking in Animate is used to hide a selected part and display content instead on a layer. तो इस चैप्टर में आपने देखा किस तरीके से एनिमेट को यूज़ करते हुए आप एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं। 3 टाइप की आपकी बेसिकली लेयरिंग होती है: नॉर्मल लेयर, गाइड लेयर और तीसरी है मास्क लेयर। इनको यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ट्विनिंग कर सकते हैं, मॉर्फ कर सकते हैं, मॉर्फिंग कर सकते हैं। किस तरीके का आपका एनिमेशन दिखेगा वो आप बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।